वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स जो है पास पास देखते हैं उन सब के बारे में इसने मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है। नीट में एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है तो हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। आज के चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो चलिए, एनसीईआरटी इसको 5 पार्ट में डिवाइड करती है: एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, 1969, where the suggested that the five kingdom classification Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर के द्वारा दिया गया था वो हम लोगों ने पढ़ा था, जो 5 तरीके से डिवाइड होता था, सेल स्ट्रक्चर वगैरह, अपने जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन फिर मॉर्फोजेनिक, वो सारे वाले ये बता रहा है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी डील इन डिटेल विद द फ्यूचर फर्दर क्लासिफिकेशन इन द किंगडम प्लांटी, popularly known as plant kingdom. ठीक है, we must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. ठीक है, fungi are the member of Monera and Protista, having cell wall have now excluded from the Plantae through earlier classification placed them in same kingdom. उनका एक kingdom बनाया गया fungi का, सबको पता है. So the cyanobacteria are also referred to as blue-green algae, are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm under Plantae. Let us also Let us also look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological character, ठीक है, such as habitat, color, number, shape of leaf, etc. They were based mainly on the vegetative or the endoecium structure. ठीक है, such systemic were artificial. They were separated the closely related species since they were based on the few characteristics. ठीक है, also the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics. बहुत ही important point है. Calica, the system is artificial. They separated the closely related species such since they were based on the characteristic. Also, the artificial system of class give equal weightage to vegetative and sexual. ठीक है, this is not acceptable since we know that often the vegetative characteristics are more easily affected by environment. ठीक है, as assigned this natural classification developed which were based on the natural affinity among organism we consider. ठीक है, not only the external feature but also the internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology and phycochemistry. Such classification of flowering system was given by John Bentham and Joseph Dalton Hooker. देखिए, एक आर्टिफिशियल सिस्टम होगा, एक नेचुरल सिस्टम होगा. नेचुरल सिस्टम जो था वो केवल एक्सटर्नल फीचर नहीं, वो इंटरनल फीचर भी गया, और उस इंटरनल फीचर में कौन कौन चीज़ें आई: एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. ठीक है, एट प्रेजेंट At present, phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between various organisms are acceptable. ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्या है हम सबने पढ़ा था कि जो इवोल्यूशनरी के साथ लिंक करे. ठीक है, दिस एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, वी नाउ यूज information from many other sources to help resolve difficulty in classification. ठीक है, these become more important when there is no supporting fossil evidence. ठीक है, important evidence है fossils. Numerical taxonomy which is not easily carried out using computer is based on the observable characteristic. ठीक है, number and code are assigned to all the character and data they proceed. ठीक है, in this way each character is given equal importance and at time 100 of character can be considered. ठीक है, एक टाइम में 100 of character consider किया जा सकता था. Cytotaxonomy is based on the cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy uses the chemical constituent of plant, resolve confusion and also used by the taxonomy by those days. ठीक है,
तो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई वगैरह। अब हम पढ़ेंगे पहला जो हम लोग का किंगडम क्लासिफिकेशन है, अलगाई। अलगाई आपने हर जगह देखा होगा, बारिश वारिश कई जगह, और आपने वो लाइकेन का रिलेशनशिप पढ़ ही लिया है फंजाई में कि फंजाई और एल्गाई मिल के बनाते हैं। और इसमें एक बस एडिशनल होता है, एनिमल के साथ बनाता है जिसको स्लॉथ फियर कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलगाई और क्लोरोफिल। देखिए, अलगाई खाना खुद से बनाते हैं क्योंकि वो ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बियरिंग सिंपल थायलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। दे ओकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम आल्सो ओकर इन एसोसिएशन विद फंजाई जिसको लाइकेन कहते हैं, एनिमल जिसको स्लॉथ बियर कहते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगाई इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनिकल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स एंड filamentous form like Eulothoryx and Spirogyra. A few of the marine forms such as scallops form a massive plant bodies. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. ठीक है, algae इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू अ थैलस। ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, द मोस्ट कॉमन उसमें क्या होता है, जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size, Eulothoryx, non-flagellated but similar in size, Spirogyra. इसका एग्जाम्पल है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस में कौन कौन आएंगे, यूलोथोरिक्स और स्पाइरोगैरा। अंतर यह है, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज या तो यूलोथोरिक्स आएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज तो स्पाइरोगैरा आएगा। साइज सिमिलर होगा, फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड का अंतर होगा, उसको आइसोगैमस में इंक्लूड करेंगे। फ्यूजन ऑफ two gametes dissimilar in size as in the species Eudornia, the term है anisogamy। ठीक है, fusion of one large non-motile female and one smaller motile male is termed as oogamous। इसमें वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस आएंगे। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगी। ग्रीन अलगी में वॉलबॉक्स, यूलोथोरिक्स, ब्राउन अलगी में लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोएटा, और रेड अलगी में प्रोपायरिया, फोर्टिस्पोनिया। अब इसका फिगर एक बार आप लोग देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन अलगी में आ गए। ग्रीन अलगी में कौन कौन थे, वॉलबॉक्स ये हो गया, ये वॉलबॉक्स हो गया, वॉलबॉक्स, ये यूलोथोरिक्स हो गया। ठीक है, फिर ब्राउन अलगी में लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोएटा, ये लेमिनेरिया हो गया, ये फ्यूकस हो गया, ये डिक्टोएटा हो गया। अब देखिए इन तीनों में अंदर फ्यूकस थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये भीड़ के जैसे है, ये ऐसे है। तो ये सारी मतलब आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी फिगर भी पूछ सकते हैं, मतलब नीट में कुछ भी कर सकते हैं नीट वाले। तो आपको हर पहलू से एनसीईआरटी से रेडी रखना है। अब लास्ट प्रोपैरा फॉलिस्पोनिया है, प्रोपैरा है, फॉलिस्पोनिया है। प्रोपैरा फॉलिस्पोनिया में अंदर क्या है, फॉन्ट है, इसमें नहीं है, इसमें मेन एक्सिस ब्रांचेस है। ये प्लांट टाइप में है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, algae are useful to man in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। ठीक है, being photosynthesis they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। ठीक है, they are paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animal। Many species of Propera, Laminaria and Sargassum are among 70 of species of marine algae used as food। ठीक है, Certain marine certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substance। उसमें आता है एल्जिन जो ब्राउन algae होता है, कैरागिन जो रेड algae है। देखो ये ग्रीन है लेकिन ये रेड algae होता है, याद रखना। कैराग्रीन, ऐसे आदमी नहीं पढ़ा रहा है तो यही लगेगा ग्रीन algae होता है लेकिन ये होता है रेड algae। और एल्जिन ब्राउन algae आर यूज कॉमर्शियली। ठीक है, अगार, सबने नाम सुना होगा अगार का। वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्लाइसेरिया यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। ठीक है, कोरेला, ये ग्रीन algae है, यूनिसेलुलर, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन इन स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, फिर द अलगी का मेन क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ठीक है, तो आपने ये सारे पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोपैरा, लेमनेरिया, सरगेसम क्या करते हैं, ब्राउन और ये अल्जीन और कैरेग्रीन क्या करते हैं। फिर अगर आ गया यहाँ पे जिलेटियम एंगेसियस आइसक्रीम और जेलीस प्रोड्यूस करने के लिए। कोलेरा हो गया जो प्रोटीन रिच होता है और फूड के लिए यूज होता है। क्लोरोफाइसी, देखिए ये क्लोरोफाइसी
रोडोफाइसी और पायोफाइसी ये मेनली अपने उसके हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट हुए थे, मतलब पिगमेंट इसमें क्या है किस तरीके से, उस हिसाब से, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में ए और बी पिगमेंट होता है, उसमें ए और सी, और लास्ट वाले में रोडोफाइसी में ए और टी। तो चलिए पूरे पढ़ लेते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन है तो इस ग्रीन कलर का है तो फोटोट्रॉपिक होगा ही। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर ग्रीन algae. The plant body are unicellular colonical filamentous. They are usually grass green due to dominance pigment A and B. The pigment are localized in a definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon in different species. ठीक है। Most of the member have one or more storage body called pyrenoids. ठीक है, located in chloroplast. पैरानॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरानॉइड जो होते हैं वो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च कैरी करते हैं। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ अलगी फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल एंड इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोस। इंपॉर्टेंट, ग्रीन अलगी जो होते हैं उनका इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है, आउटर लेयर पेक्टोस का बना होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन or by the formation of different type of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores producing zoosporangia. The sexual reproduction show considerable variation in the type and formation of sex cell and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. तीनों प्रकार का sexual reproduction होगा। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी कभी ऐसे नहीं पूछेगा ग्रीन एल्गी कंटेन दैट, एनसीईआरटी ऐसे पूछेगा वॉलबॉक्स कंटेन दिस, यूलोथोरिक्स कंटेन दिस, क्लेमाइडोमोनास कंटेन दिस, पैरोगेरा कंटेन दिस, कैरा कंटेन दिस। तो ये एग्जाम्पल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार 10 स्टार लगा इसको। फिर पायोफाइसी आ गया जो ब्राउन एल्गी होता है। द मेंबर ऑफ द पायोफाइसी ब्राउन एल्गी आर प्राइमरली फाउंड इन द मराइन हैबिटेट, ठीक है। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच filamentous form ectocarpus to profusely branched form represented scales which may reach to the height of 100 meter, ठीक है। They process chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन एंड मेटिनॉल, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड on the outside by gelatinous coating called algin, ठीक। The protoplast contain in addition to plast is a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by holdfast, ठीक है, and stalk. The strip and leaf like photosynthesis organ called frond, ठीक। Vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most of the brown algae by biflagellated zoospore that that are pear shaped and have two unequally laterally attached flagella, ठीक है। Sexual reproduction is iso, aniso and oogamous. Union of gamete may take place in water or within the ooganium, ठीक है। The gametes are pyriform and bear two laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus, dictyota, laminarine, sergatum, fucus, ठीक है। एक्टोकार्पस डिक्टोटा लैमिनारिन सर्गेसम फुगस मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। रोडोफाइसिस को रेड एल्गी कहते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसिस का रेड एल्गी बिकॉज द प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, जिसको आर पाइकोइलेक्ट्रीन कहते हैं। आर पाइकोइलेक्ट्रीन इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन with greater concentration found in the warmer area. They occur both in well light region close to the surface of water and also in the great depth in the ocean where relatively little light penetrates. Important है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे दे, ठीक है। प्रोपेरिया इसका एग्जाम्पल है ना, प्रोपेरिया फलिस्पोनिया ग्लेसलेरिया जिलेटा। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे दे कि डेप्थ सी में, सी के डेप्थ में कौन सी एल्गी प्रेजेंट रहती है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप बोलेंगे जैसे अगर रेड एल्गी का कोई भी एग्जाम्पल है फॉलिस्पोनिया, प्रोपेरिया जिलेटम एंड ग्लेसलेरिया, तो आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। Red thalli of the red algae are multicellular. Important. Some of them have a complex body organization. The food is stored in Floridian starch. उसमें किसमें ब्राउन एल्गी में किसमें स्टोर होता है, मेटिनॉल एंड लेमिनरीन। इसमें रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट। The red algae usually reproduce by vegetative and fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile
gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by a complex post-fertilization development. The common member are Follisponia, Propyra, Glacelaria and Gillidium. ठीक है, अब एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं. क्लोरोपाइसी, फियोपाइसी, रोटोपाइसी. ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फुकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी, फाइकोइलिथ्रिन. ठीक है, इसमें स्टोर फूड स्टार्च, मेथिनॉल एंड एमिनॉल. इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च. ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज, सेलुलोज एंड एल्जीन, सेलुलोज, पेंक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर. ठीक है, फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन 2 8 इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, और ये एब्सेंट होते हैं इसमें. रोडोफाइसी रेड अलगी में फ्लैजेला क्या होते हैं? एब्सेंट. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर. ठीक है, याद करने वाला क्या है? फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला 2 अनइक्वल होते हैं, फ्लैजेला 2 इक्वल होते हैं. ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज एंजिन, सेलुलोज पेंटिन पाउडर, वरिडियन स्टार, मेथिनॉल और लेमिनेरिन. ये सब याद करने. पिगमेंट आपको याद ही है, ए बी, ए सी, ए डी. इसमें फोकोजेंथिन आ जाता है, इसमें पाइकोइलिथ्रिन आ जाता है. बस दैट्स ऑल. दूसरा शुरू करते हैं, ब्रायोफाइटा. ठीक है, Bryophyta include the various moss and liverroot that are found commonly growing in moist shaded in the hills. ठीक है, ब्रायोफाइटा लीवर और मार्केंसिया है, फीमेल थैलस, मेल थैलस. ठीक है, ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं. पहला जो है लीवर रोड के मार्केंसिया का है, जो पहला फीमेल थैलस है और दूसरा मेल थैलस है. देखो अगर ये मार्केंसिया दोनों है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे मेल और फीमेल कौन है, तो देखो फीमेल जनरली सुंदर ही होती है, हम लोग साली कति पैदा होते हैं. तो जो ये फीमेल से देखो ये सुंदर दिख रही है, मेल देखो लग रहा है कि कोई पता नहीं क्या करके चला गया. तो मेल ये है, फीमेल ये है. तो अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे, गेमा कब दोनों में प्रेजेंट आता है, इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट दोनों में प्रेजेंट रहेगा. तो यहीं पे डिफरेंस आता है, तो ये आप पहचान नहीं का ट्रक. और ये मार्केंसिया हो गया, मेल एंड फीमेल, मेल थैलस, फीमेल थैलस, फुनेरिया, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. बी में क्या था? मेल थैलस मॉस. बी में मेल थैलस ऑफ मॉस. ठीक है, मेल थैलस ऑफ मॉस है, फीमेल थैलस. ठीक है, ठीक है. अब फ्यूनेरिया देख लेते हैं, जो गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फिगर सी में एक ही में होता है. देखिए, ये स्पोरोफाइट है, ये फुनेरिया का ये गेमिटोफिटिक स्टेज है. अगर पूछ देगा गेमिटोफाइट में क्या क्या आएंगे, तो मेन एक्सिस आ जाएगा, राइजॉइड्स आ जाएगा, लिप्स आ जाएगा. ये किस में आएंगे? गेमिटोफाइट में. स्पोरोफाइट में कैप्सूल और सेटा, ये दोनों स्पोरोफाइट में आ जाएंगे, ये तीनों गेमिटोफाइट में आ जाएंगे. फिर लास्ट स्पैग्नम है में भी, लास्ट स्पैग्नम डी, गेमिटोफिटिक स्टेज का उसका बताया. स्पैग्नम एंथ्रीडियल ब्रांचेस, एंथ्रीडियल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये आर्किगोनियल ब्रांचेस. ठीक है, आर्किगोनिया अंदर होगा, एंथ्रीडिया में जो बड़ा बड़ा दिखेगा वो है. ठीक है, पढ़ लेते हैं. Bryophyte also known as amphibian of plant kingdom because this plant can live in soil but dependent on water for sexual reproduction. ठीक है, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये इनको वाटर चाहिए होता है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. दे यूजुअली ओकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी. ठीक है, मतलब डैम्प, ह्यूमिड या मॉइस्चर विस्चर, अंधेरी वाली जगह यहाँ पे होते हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स. ठीक है, The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. Bryophyte का plant body जो है more differentiated है किससे? algae से. It is thallus-like, posted or erect and attached to the substratum by unicellular and multicellular rhizoids. They lack two roots, stems and leaf. ठीक है, they may possess root-like, leaf-like, stem-like structure. The main plant body of bryophyte is haploid. ठीक है, main plant body और ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है. ठीक है, इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको गैमेटोफाइट कहते हैं. द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर. द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, they produce biflagellated anthrozoid. The female sex organ archegonium is flag shaped and produce a single egg. The anthrozoid are released in water where they came contact with archegonium. ठीक है, the anthrozoid fuses with the egg to produce zygote. ठीक है,
Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free-living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nutrition from it. Some cell of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. ठीक है? The spores germinate to produce gametophyte. Bryophyte in general are little economic important, but some of moths provide food for herbaceous plant important. Birds and other animal. Species of sphagnum, ऊपर हमने देखा था मॉस है ये, ठीक, मॉस के अंदर आता है, प्रोवाइड पीट that have long been used as a fuel, ठीक है, and as a packing material for transshipment living material because of the capacity to hold water, ठीक है. Moss along with lichen are the first organism to colonize rocks and hence are great ecological importance, ठीक है. ये सब इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस है ब्रायोफाइटा का. दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्टेंस suitable for growth and higher plant. Since moss form dense mat and soil, they reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion, and the bryophytes are divided into liverwort and mosses. ठीक है. पहला है riverwort जो हम पढ़ लेते हैं. Liverwort grows usually in the moist sandy habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil, barks of tree, and leafy nodes. ठीक है. The plant body of liverwort is thalloid. Example Markensia. Thallus is dorsoventrally and closely applied to the substrate. The leafy member have a tiny leaf-like appendage in two rows of stem-like structure. Asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized thalli called gamete. The gamete is green, multicellular, and asexual bud, which develop small receptacle called gamma-coc located on the thalli. The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individual. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced on either on the same or different thalli. The sporophyte is differentiated into food seta capsule. After meiosis, the spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free living gametophyte. ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है जो आपका किसमें आएगा, क्या नाम है, लीवर रोड्स में. ठीक है. मॉस में अंतर क्या होता है, मॉस और लीवर रोड में प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन मॉस आर इज गेमेटोफाइट. देखिए आपको गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के वेरिएंट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं. जो भी छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे अलगाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इवन सम टेरिडोफाइटा, तो ये मोस्टली इनका मेन अगर लाइफ साइकिल प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल देखेंगे तो वो मेनली गेमेटोफाइट ही होगा. ठीक है. वो स्पोरोफाइट बहुत कम देर के लिए आएगा. लेकिन यही अगर आप टेरिडोफाइट में जाएंगे तो उसमें आधा आधा टाइप में होगा. ठीक. और जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो उसमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा. ठीक है, मेन लाइफ साइकिल का. एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है. देखिए प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट टू स्टेज. ठीक है. द फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स. प्रोटोनेमा जो होता है वो डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होता है. स्क्रिप्सिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेटस स्टेज. ठीक है. ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेटस स्टेज. सेकेंड स्टेज लिफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड. ठीक है. दूसरा स्टेज इसका लिफी स्टेज है जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड डेवलप होता है. They consist of upright cylinder and bearing spirally arranged leaf. ठीक है. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. The stage bear the sex organ. इस स्टेज में क्या सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं. Vegetative reproduction in moss is by fragmentation and budding. ठीक है. In the secondary protonema, in sexual reproduction, the sex organ Entheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote developed into sporophyte, consisting of food seta capsule. The sporophyte in moss is more elaborate than liverwort. Important. जो स्पोरोफाइट देखिए मॉस लिवर रोड्स के बाद ही आया होगा ब्रायोफाइटा में. ठीक. तभी उसमें इतना डिफ्रेंसिएशन लिफी स्टेज ये स्पोरोफिटिक की सारी चीज़ें. तो मैंने कहा था ना जो जितना मेच्योरिटी की तरफ जाएगा वो स्पोरोफाइट को मोर प्रीडोमिनेट करेगा. ठीक है. तो इसका मॉस का मोर इलेबरेट देन लिवर. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में और आपको भी याद रखनी है. द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स सबको पता है. स्पोर आर फॉर्म बाय मियोसिस. द मॉसेस हैव इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस फुनरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम. ठीक है. टेरिडोफाइटा देख लेते हैं इनमें क्या होता है. Pteridophyta include horse, stale, and fern.
Pteridophyta are used for medicinal purpose and soil builder, ठीक है. They are also frequently grown as ornaments, ठीक है. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to process vascular tissue, xylem and phloem, ठीक है. You shall study more about this tissue. The pteridophyte found in cool, damp and sandy places, through some may flourish well sandy soil in condition. You may recall that bryophyte, the dominant phase in the life cycle, gametophyte, ठीक है. ब्रायोफाइटा का बात कर रहा है. However, pteridophyte, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves, ठीक है. ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, देखिए यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू आने लगा, जबकि ब्रायोफाइटा में नहीं आया था. द लीव्स ऑफ द टेरिडोफाइट स्मॉल माइक्रोफिल्स करते हैं एज इन सिनेजनेला और लार्ज एज इन फर्न्स, ठीक है. एग्जाम्पल दोनों के याद रखेंगे. स्मॉल लिप्स पाए जाएंगे तो वो किस में पाए जाएंगे, सिनेजनेला में. अगर लार्ज माइक्रोफिल लिप्स पाए जाएंगे तो किस में पाए जाएंगे, फॉन्स में. द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिक्स कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है. स्पोरोफाइट्स होते हैं वो बियर स्पोरेंजिया करते हैं और सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिक्स कॉल्ड स्पोरोफिल. इन इन सम केसेस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेली और कोन. उस स्टेजेस में डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्टेबली और कौन फॉर्म करते हैं, जिसमें सिनेजेला इक्विस्टियम आते हैं. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, स्पोर मदर से. द स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर क्या फ्री लिविंग मोस्ट फोटोसिंथेसिस थैलाइड कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है. याद रखना. एक बार इसका ये देख लेते हैं. पहले भी सिनेजेला, फिर इक्विस्टियम, फर्न, साल्विनिया. पहले सिनेजेला देख लेते हैं. देखिए एड़ा टेढ़ा फेड़ा फेड़ा, ये सिनेजेला हो गया, ठीक है. दूसरा पे क्या है, इक्विस्टियम. स्ट्रोबिलस, नोड, इंटरनोड, ब्रांच, राइजोम, इसमें सारे पाएंगे. ये क्या है, इक्विस्टियम. इक्विस्टियम, ठीक है. ये क्या है, स्नेजिनेला, ठीक. फिर दो नीचे, पहला क्या है, इस सी वाला क्या है, फॉर्न. ये क्या है, साल्विनिया, ठीक है. ये साल्विनिया है. वो ऊपर वाला स्नेजिनेला, बी वाला इक्विस्टियम, ये क्या है, फॉर्न. तो याद रखेंगे. एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, प्रोथैलस. द स्पोर्स जर्मिनेट गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर. सारे लाइंस इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ से जो पढ़े हैं स्पोर्स से, ठीक है. फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेसिस थैलोइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ देगा कि जो प्रोथैलस होते हैं वो थैलॉइड होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक. उसमें पूछ सकता है फ्री लिविंग होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक. उसमें पूछ सकता है कि ये जो ऊपर के तीन थे, इनकॉन्सिपिशियस होता है कि कॉन्सिपिशियस होता है, तो आप कौन से इनकॉन्सिपिशियस लगाएंगे. स्मॉल होता है कि लार्ज होता है, तो स्मॉल. मल्टी सेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. यही सब डिफरेंसेस हैं, याद रखिएगा. द गेमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल, damp and sandy places to grow, ठीक है. Because of the specific restricted requirement and the need of water for fertilization, the spread of pteridophyte is limited and restricted to the narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonium respectively. Water is required for the transfer of anthrozoid, the male gametes released from antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is dominant phase of pteridophyta. ठीक है. इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड. सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस जनरल लाइक सिनेजेनेला एंड साल्विनिया. इसमें हेटेरोस्पोरस होता है, सिनेजेनेला एंड साल्विनिया, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, माइक्रो एंड माइक्रो, ठीक है. आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल कौन सा है, सिनेजेनेला एंड साल्विनिया. सिनेजेनेला एंड साल्विनिया हेटेरोस्पोरस. लेकिन मेजोरिटी टेरिडोफाइट क्या आता है, होमोस्पोरस, ठीक है. द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली.